Hello and welcome to Embedded Logic's Knowledge Hub. We all know that choosing the right microcontroller for an embedded application is a critical decision because the performance of the MCU determines how well the system executes tasks, processes data, and interacts with users and other components. Performance is a key, but at the same time, cost is also equally important because MCU should fit into project or product budget without compromising essential performance. Hi, I am Milind Trivedi, and in today's video, we will discuss about the steps to choose microcontroller for your embedded applications. First step is application know-how and complexity. Obviously, जो आपकी एप्लीकेशन है या प्रोजेक्ट है, उसका कंप्लीट फंक्शन और वर्किंग आपको पता होना चाहिए. जनरली एप्लीकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ प्रोसेस विच एक्सेप्ट्स इनपुट्स एंड इट प्रोवाइड्स आउटपुट्स. तो फर्स्ट स्टेप में हमें फोकस करना है प्रोसेस के ऊपर. हमें प्रोसेस का कॉम्प्लेक्सिटी पहले फाइंड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हो कि आपका प्रोसेस में कोई कंट्रोल एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन हो रहा है, आपका प्रोसेस में कोई इंटेंसिव मैथ कैलकुलेशंस है या नहीं, बिकॉज जनरली कंट्रोल एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन रिक्वायर्स heavy resource as well as intensive math calculations, specifically multiplication and division also requires heavy resource. ये सब इंफॉर्मेशन के बाद आपको फाइंड आउट करना है आपका एप्लीकेशन साइकिल टाइम और द लूप टाइम. सो आपका जो भी कैलकुलेशंस है बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स वो सब एक लूप में चलता रहेगा. तो ये जो लूप है वो कितना फास्ट चलना चाहिए वो आपको फाइंड आउट करना है. Also, you need to find the real-time performance requirements for the time-sensitive applications. For example, medical, robotics, aviation और automotive ऐसी time-sensitive applications है, उसमें real-time performance requirement है. For example, something has to be triggered after 10 millisecond, then it has to be within 10 millisecond, not at 9 millisecond, not even at 11 millisecond. So, time constraint restriction है, strict है, तो उसको हम बोलते हैं real-time performance requirement. तो ये सब एक्सरसाइज करने के बाद आपके फर्स्ट स्टेप में आपके पास होगा एप्लीकेशन साइकिल टाइम और लूप टाइम. तो फॉर एग्जांपल जैसे आप इंडक्शन मोटर या पीएमएसएम का वेक्टर कंट्रोल करना चाहते हो, तो मे बी आपका लूप फ्रीक्वेंसी है तो 10 किलोहर्ट्ज या उससे ज़्यादा हो सकता है. तो इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो आपका ऑल कैलकुलेशंस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 100 माइक्रोसेकंड और इवन इन लेस टाइम. So this is very important step. You need to find out how fast your application should process your data. So that's why application cycle time or loop time you need to calculate. Next step is to find the clock speed and the bit size requirement of MCU. Now we all know that we can have the bit size of either 8-bit, 16-bit or 32-bit. To calculate the clock speed, we should take one example. So let's say after completion of the first step, the loop time requirement is 100 microsecond. So what we require is all the calculations should be completed within 100 microsecond. Now the next step is, let's say we have chosen a controller which has the frequency or the clock frequency of 10 megahertz, right? तो हमारे जो कंट्रोलर है उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज़ है एंड देन वी नीड टू फाइंड द CPU cycle time. CPU cycle time. So we all know that CPU cycle time is equal to 1 upon clock speed in megahertz. If clock speed is in megahertz, cycle time will be in microsecond. So based on this clock frequency, our CPU cycle time would be 0.1 microsecond. Okay. अभी हमें क्या करना है कि वी नीड टू फाइंड द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ वन असेंबली इंस्ट्रक्शन. नाउ दिस असेंबली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम कुड बी वेरिएबल बिकॉज द असेंबली इंस्ट्रक्शन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फॉर एग्जांपल मूव, कॉपी, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस है या लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस है. तो ऑल दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ CPU साइकिल्स. फॉर एग्जांपल जो कॉपी या मूव इंस्ट्रक्शंस है वो एक CPU साइकिल में ख़त्म हो सकती है, और इफ़ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाली इंस्ट्रक्शंस है तो इट कैन टेक अप टू 3 और 4 और मोर असेंबली इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो, मोर CPU साइकिल्स ऑल्सो. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू डू अ रफ गेस. फॉर एग्जांपल हम गेस करते हैं कि वन असेंबली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए हमें चाहिए 3 CPU साइकिल्स. वाई? बिकॉज हमारा जो पूरा प्रोग्राम है
वो प्रोग्राम में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होगी, जिसमें अरिथमेटिक भी होगी, लॉजिकल भी होगी, मूव कॉपी वाली भी होगी। तो कोई इंस्ट्रक्शन का 1 CPU साइकिल है, कोई का 3 है, कोई का 4 है। तो ऑन एन एवरेज सपोज हम 2 मान के चले या 3 मान के चले, तो दिस इज अ नंबर विच वी कैन गेस 3 CPU cycles. So based on this assumption, what we can find is the time period of one assembly instruction execution comes out to be 0.3 microsecond, क्योंकि हमारा CPU साइकिल 0.1 माइक्रोसेकंड का है और हमें 3 CPU साइकिल्स चाहिए, तो देन वी हैव टाइम फॉर वन असेंबली इंस्ट्रक्शन इक्वल टू 0.3 माइक्रोसेकंड। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी लूप टाइम है 100 माइक्रोसेकंड। सो वी कैलकुलेट दैट विद इन 0.3 माइक्रोसेकंड अगर हम एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो 100 माइक्रोसेकंड के अंदर हम कितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम वो कैलकुलेशन करें तो हमारा जो अभी का एक फिगर आएगा विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 333 और लेट्स से 300 इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमारा अभी का कैलकुलेशन हमें दिखा रहा है कि अगर हम ये कंट्रोलर चूज करते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज़ है और हमारा लूप टाइम अगर 100 माइक्रोसेकंड है, तो हम एक साइकिल में या एक लूप टाइम में अप्रोक्सीमेटली 300 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू टेक अ गेस, यू हैव टू टेक अ जजमेंट दैट दिस नंबर इज अ बिगर और लोअर फॉर योर केस। जैसे आप कैलकुलेट करो कि आपका इनपुट कितने इनपुट से कितने आउटपुट से प्रोसेस किया है, सीरियल कम्युनिकेशन कर रहे हो, GUI है, डिस्प्ले है, टच ऑपरेटेड कुछ है, या फिर आप जो भी कुछ मतलब प्रोसेस कर रहे हो उसमें कंट्रोल एल्गोरिदम है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी है। तो यू कैन टेक अ गेस कि ये 333 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपके लिए ज़्यादा है या कम है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई मोटर कंट्रोल कर रहे हो या कोई ड्रोन का फ्लाइट कंट्रोलर डिज़ाइन कर रहे हो, तो देन दिस वुड बी क्वाइट लेस, बिकॉज 300 इंस्ट्रक्शंस के अंदर अगर आप सब कुछ करने जाओगे, डिस्प्ले, इनपुट्स, आउटपुट्स, कम्युनिकेशंस, तो वो नहीं हो पाएगा। तो फॉर सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन दिस कंट्रोलर और दिस क्लॉक फ्रीक्वेंसी वुड बी नॉट सूटेबल। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मुझे पता है कि ये मेरे पास ये 300 इंस्ट्रक्शंस बहुत कम है, तो अगर मैं चूज़ कर रहा हूँ मेरा कंट्रोलर विथ 100 मेगाहर्ट्ज़ ऑफ क्लॉक फ्रीक्वेंसी, तो मेरा CPU साइकिल टाइम हो जाएगा 0.01 माइक्रोसेकंड। और अगर सेम कैलकुलेशंस में रखूँ तो मेरा टाइम होगा फॉर का एग्जीक्यूशन ऑफ वन असेंबली इंस्ट्रक्शन 0.03 microsecond, and then I can calculate approximately 3000 instructions within my loop time of 100 microsecond. Then this should be a fair number for complex applications also. So ये जो कैलकुलेशंस है वो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपका कंट्रोलर जो है उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए या किससे एटलीस्ट ऊपर होनी चाहिए। अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया, क्लॉक स्पीड आपने रफ गेस कर लिया, तो बीट साइज आप इजीली गेस कर सकते हो, बिकॉज दिस क्लॉक स्पीड एंड बीट साइज आर मोर और लेस रिलेटिव। बिकॉज आप 8 बिट कंट्रोलर का क्लॉक स्पीड देखोगे तो नॉर्मली इट इज़ इन द रेंज ऑफ 8, 10, 15, 16 मेगाहर्ट्ज़। 16 बिट कंट्रोलर्स का थोड़ा ज़्यादा होगा, और इफ़ यू वांट टू गो विथ द क्लॉक स्पीड ऑफ मोर देन लेट्स से 100 megahertz, then you have to go for 32-bit microcontroller. So once you choose the clock speed, and then you can easily able to choose the bit size of your controller. The other point regarding this same topic is the average throughput called MIPS. ये मोस्टली मैन्युफैक्चरर जो है वो डेटा शीट में मेंशन करते हैं कि हमारा जो भी कंट्रोलर है वो कितने मिप्स का परफॉर्मेंस देता है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस मेजर। एवरेज थ्रूपुट इज एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर मेजर्ड इन मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मिप्स यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो फॉर एग्जांपल ये नंबर अगर 10 है, दैट मीन्स ये जो कंट्रोलर है वो 1 सेकंड में 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अगर आपके पास ये नंबर है तो फ्रॉम दिस नंबर ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट दिस पार्ट, क्योंकि एक सेकंड में अगर 10 मिलियन कर सकता है तो 100 माइक्रोसेकंड के अंदर वो कितना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो यू विल कम टू दिस पॉइंट एंड फाइनली अगेन यू विल decide what type of frequency you have to choose and what type of which should be the what should be the bit size for your MCU. The next step is to find digital input, output, analog input, output and other peripheral requirement.
So here you have to calculate number of inputs and outputs you have, types of input and output you have, and for that particular type of input and output, which are the peripherals you required, and type and quantity. For example, timers, how many timers you required, how many UART, SPI or I2C communication channel you required, if you require ADC, DAC, or if you require DMA or not. So you have to list all the peripheral type and their quantity. Fourth step is to find middleware requirements like Bluetooth, Wi-Fi, USB, etc. Many controllers comes with on-chip Bluetooth and Wi-Fi possibility. So for example, ESP32 comes with Bluetooth and Wi-Fi. STM32WB series comes with Bluetooth. So if you choose this type of controllers, then you don't need any other add-on modules to have a communication via Bluetooth or Wi-Fi. Next step is about power consumption of microcontroller. This is a very important point, especially for the battery operated devices. Many times controller comes with a kind of sleep mode, deep sleep mode, standby mode, etc. So you need to find whether your controller comes with any of this kind of mode or not. I can show a fun example. So here you can see I have opened the data sheet of STM32F4 series of microcontroller, and here I can show you the difference between the standby mode or run mode. Okay, so here if you can see supply current in run mode, so it's a normal operating current, supply current, and if you let's say we talk about 168 megahertz of operation, that is the full speed operation, the typical supply current is 93 milliamps here. And if we compare this 93 milliamps with other condition, for example, supply current in sleep mode. So this is the supply current in sleep mode. Clock is 168 megahertz. Now here it's 59 milliampere. So now you are started saving some of the amps, and that's why it's a little bit less power consuming mode. If you want to go beyond this, then we have something called stop mode, and here supply current in stop mode is, you can see, 0.45 milliampere, so it's quite low. And you have supply current in stop mode when with major regulator in low power mode. So here the regulator is in run mode, here the regulator is in low power mode. So this is one more step, is also called a deep sleep something. And in deep power down mode, you can see the current requirements is just 0.31 milliamps. So this way you can check. And yeah, standby mode is also there. You can see in supply current in standby mode, it's hardly 3 microampere. So you can see how much power we are saving, from 93 milliampere down to 3 microampere. So this is how the standby mode and deep sleep mode works. So you need to find out if your controller supports this kind of mode, so that when your application runs, maybe it's possible that within 100 microsecond of the loop time, you complete your calculation within 50 microsecond. So rest of the 50 microsecond you can have the standby or the sleep mode, so you can save the power, and then again after 100 microsecond you wake up and you start resuming your task. So the next step is choice of brands based on above criteria plus development support and ecosystem. तो यहाँ पे आपको पहले देखना पड़ेगा कि 2-3 ब्रांड जो अगर आपने चूज किया है, जैसे इफ़ यू वांट टू गो विथ टीवा मीन टेक्सास कंट्रोलर और एसटी कंट्रोलर और एनएक्सपी ब्रांड के कंट्रोलर, सो देन यू हैव टू फाइंड आउट कि उसका इकोसिस्टम कितना मैच्योर है. दैट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट टूल्स सच एज कंपाइलर, डिबगर, लाइब्रेरीज कितने हैं, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट कैसा है कंपनी का, और कम्युनिटी सपोर्ट कैसा है. जैसे आप आर्डिनो में कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो यू नो दैट on internet there are a lot of examples and everything available for the Arduino programming, so it's very easy for you to just look at the video and start something. वैसे ST का अगर हम बात करें तो ST ने STM32 Cube MX करके एक सॉफ्टवेयर दिया है जिसमें हम पूरा
पेरिफेरल को ग्राफिकली इनिशियलाइज कर सकते हैं एंड वी कैन डायरेक्टली जनरेट द कोड। सो ये सब सपोर्ट के हिसाब से क्या होता है कि आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है और आपके लिए वो ईजी हो जाता है। तो दिस विल बी द टॉपिक ऑफ सिलेक्शन ऑफ द ब्रांड्स, लाइक आपका इकोसिस्टम कितना मैच्योर है और आपको सपोर्ट कितना मिल रहा है। उसके बाद यू कैन चूज पैकेज टाइप फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस। आप जो भी ब्रांड के साथ जाना चाहते हो उसमें आप देख लो कि कौन कौन से पैकेज ऑप्शंस अवेलेबल है। DIP पैकेज है या QFP LQFP होगा या PLCC है या SOP और TSOP एक्सेट्रा। तो आपकी सोल्डरिंग एबिलिटी या फिर आपका सोल्डरिंग कन्वीनियंसी, आपका PCB डिज़ाइन या जो भी आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आप पैकेज चूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइस वेरिएशन बेस्ड ऑन द मेमोरी, फ्लैश plus RAM. Here you can see we are at the STM32F4 series data sheet. So यहाँ पे STM32F405 के अलग अलग वेरिएंट्स आपको दिख रहे हैं। STM32F405 RG, OG, VG, ZG, OE। तो ये जो भी वेरिएंट्स हैं उसमें कुछ अलग डिफरेंसेस है। जैसे फ्लैश मेमोरी है वो यहाँ पे 1024 किलोबाइट्स की है, यहाँ पे 512 किलोबाइट्स की है। SRAM इज़ कॉमन फॉर ऑल 192 किलोबाइट्स। और जो भी पेरिफेरल्स है जैसे टाइमर है तो कौन से वेरिएंट्स में कितने टाइमर है, एडवांस टाइमर है या नहीं है, उसका UART कम्युनिकेशन इंटरफेसेस में नंबर ऑफ UART कितने हैं, फिर CAN चैनल कितनी है, जैसे I2C SPI कितने हैं, वो सब यहाँ पे लिखा होगा। जैसे GPIO यहाँ पे है तो GPIO में यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस है, 51, 72, 82, 114 समथिंग लाइक दिस। यू कैन चूज बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। मोस्टली हमने जो भी पहले एक्सरसाइज की है उसमें टाइमर या कोई भी पेरिफेरल का तो कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने कर दिया है, लेकिन अभी जो बाकी है वो मेमोरी के हिसाब से बाकी है। तो मेमोरी आप देख लो कि आपको 1024 किलोबाइट्स चाहिए या 512 किलोबाइट्स चाहिए या कोई भी, मतलब आप वेरिएशन जो भी है अवेलेबल सीरीज में उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। The next step is new design recommendation by company. This is a very important step. I will show you how. So we are on the website of ST Microelectronics. Here we have chosen this STM8AF series. So for example, आपने जो भी आपका कंट्रोलर है वो STM8AF series में से कोई है। And when you choose the product selector tab, तो यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के साथ आपको एक मार्केटिंग स्टेटस दिखा रहा है। ये कॉलम में लिखा है मार्केटिंग स्टेटस। तो ये जो भी डिवाइसेस है उसके आगे लिखा है एक्टिव। तो एक्टिव का मतलब है प्रोडक्ट इज इन वॉल्यूम प्रोडक्शन। तो उसका सपोर्ट अभी आपका 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक उसका जारी रहेगा और प्रोडक्शन में है। तो आपको ये डिवाइस लेके नया डिज़ाइन बनाने के लिए कोई इशू नहीं है। तो दिस इज अ ग्रीन कलर्ड, सो इट्स अ फाइन। बट इफ़ यू चूज सम अदर डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल आपने सब एक्सरसाइज करके ये वाला चूज किया, आपने डेटा शीट भी पढ़ ली, वो सब आपके लिए परफेक्ट है, पर अगर आपने यहाँ पे देखा नहीं कि उसका मार्केटिंग स्टेटस क्या है तो प्रॉब्लम आपका क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है NRND, दैट मीन्स नॉट रिकमेंडेड फॉर न्यू डिजाइन, प्रोडक्ट इज इन वॉल्यूम प्रोडक्शन ओनली टू सपोर्ट कस्टमर्स ऑनगोइंग प्रोडक्शन। तो ये उन्होंने लिखा है कि नया डिज़ाइन के लिए रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि उसका सपोर्ट अभी धीरे धीरे जाने वाला है। तो अगर आपने ये डिवाइस को लेके अपनी डिज़ाइन बना ली तो हो सकता है कि 1 साल 2 साल के अंदर ये डिवाइस ऑब्सोलेट हो जाए, उसका सपोर्ट मिलना बंद हो जाए या फिर ये डिवाइस अवेलेबल ही ना हो, तो आपके पूरा प्रोडक्ट का रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स है कि आपने जो भी एक्सरसाइज करने के बाद जो डिवाइस चूज़ किया है, 2, 3, 4 जो भी डिवाइसेस है, उसका एक बार मार्केटिंग स्टेटस चेक कर लो अपनी कंपनी की वेबसाइट पे जाके। वो नया डिज़ाइन के लिए रिकमेंडेड है या नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। फाइनली आता है द मेन पार्ट, कॉस्ट कंपैरिजन बिटवीन ब्रांड्स एंड डिवाइसेस बेस्ड ऑन प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो आपने सब स्टेप्स करने के बाद जो भी आपका कंट्रोलर का फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है कि वो 3-4 डिवाइसेस हो जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो। ESP32 का एक वर्जन आपको बेटर लग रहा है, उसके साथ STM32 का भी एक वर्जन आपको बेटर लग रहा है, तो आप दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो, दोनों आपके लिए परफेक्ट है। सो मे बी ओनली चॉइस यू हैव टू डू नाउ इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप कॉस्ट कंपेयर करो तो आपका प्रोडक्शन कितना है वो आप चेक कर लो। जैसे आप अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वन टाइम प्रोजेक्ट है,
तो ऑब्वियसली जो वन टाइम प्रोजेक्ट है तो वो आपका जो सस्ता है वो आप ले लो, आपके मार्केट में अवेलेबल है जो भी सस्ता है वो आप चूज कर सकते हो। बट अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको आप सेल करना चाहते हो, तो मान लो कि आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम है 100 पीसीस का या 200 पीसीस का पर ईयर, तो वो 100 या 200 पीसीस के हिसाब से कॉस्ट कंपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि सिंगल पीस ESP का या फिर कोई और कंट्रोल का कॉस्ट देखोगे तो प्लस माइनस हो सकता है। पर अगर ऐसा होगा कि अगर 100 पीस का आप जब चूज करते हो तो जो पहले एक पीस में महंगा लग रहा था वो शायद 100 पीस के हिसाब से सस्ता भी हो, तो then you have to compare the cost based on your requirement of production. After all this, you come across the final selection. I hope you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Goodbye.